Okay, let's start. The first question is talking about your trekking background. How long have you been trekking? Okay, so it's been around 8 years from now. I have started doing treks in 2016 after my bachelor's. From then, I'm doing my trekking journey, and I have done like freelancing, trek leading, then other things. So I can say like trek leading is the best part of, I can say, like after like 6, 7, 8 years, I can say. Okay. How often do you go trekking in a year? In a year, if I can say, maybe every single month. Previously it was like every single month, like twice or thrice, but now I'm going for like a at least a trek in a month. Yeah. Okay. What kind of treks do you usually do? Day hikes, multi-day treks, expeditions? That depends actually. That depends to me because how many days that I can afford at that particular weekend. If I have only weekend, then I can go for a weekend hike. If I can manage for a week, then I will suggest like for a multi-day treks. And moreover, I really like multi-day treks and expedition are the main things that I really like or I really keen to do it. Have you done any expeditions? What? Hello? 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 हेलो या मैं पूछ रही हूँ कि हाँ जी. आपने कभी कोई एक्सपीडिशन करा है? हाँ जी, हाँ जी. Okay, so expedition, I have done Mount Friendship Peak, then Mount Yunam in Ladakh. That is 6,000-meter peak, and one more expedition that is in like that is no, not actually expedition. Actually, that was a training. That is a part of training in West Sikkim, Kabru Dome. Okay. What was your last trek? When and where? Okay, so last trek that was in this winter actually. That is Kedar Kantha. तो अभी मतलब लास्ट विंटर में ही अभी करके आया हूँ. Okay. Talking about your current backpack usage, what backpack are you currently using? The brand and the capacity. Okay, so I have actually around three rucksack. One is for trip, then other two is for basically like for treks or expedition. And for treks, actually, I'm using right now Deuter. I don't know the exact model actually, but I have Deuter that is of around 45-liter backpack. And another one is from Decathlon. One that is around like 70 liters. Same, I don't remember the exactly like brand, sorry, model name, but Can that is like you, orange color. Then yeah. Can you okay, share the online link of your backpack? okay, क्या चीज? Uh, आप लिंक भेज सकते हो अपने बैकपैक का ताकि मैं देख सकूँ. Sure, sure, I will send. मैं भेज दूंगा आपको. मुझे पूछना था बैकपैक और रक्सैक में क्या फ़र्क होता है? ओके, सो बेसिकली बैकपैक्स आपके ना जो सो बैकपैक्स आर द कैटेगरी जो मेरे को लगता है कि बैकपैक्स आर द कैटेगरी जिसके अंदर काफी सारे लाइक डे पैक अलग होता है, देन रक्सैक अलग होता है, देन डफल बैग अलग होता है. बैकपैक इज यूजुअली रक्सैक. जो आप मतलब हाँ, तो ओके. बैग में बेसिकली जो आप यूजुअली मतलब कैरी करके आप ट्रैवल कर सकते हो. रक्सैक बेसिकली मोर ओवर इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इज मोर आइडियल फॉर ट्रैकिंग एंड हाइकिंग थिंग्स. ओके. Um, Next question. Why did you choose this backpack? Okay, so previously I was when I was not aware about the rucksack और जब मेरे को पता नहीं था ढंग से इनके बारे में, तो यूजुअली मैंने नॉर्मली एक rucksack ले लिया था. But then I got to know after my training, after my like mountaineering certification, कि a rucksack should have like a firm or good back, then उसकी compartments अच्छे होना चाहिए, then obviously yes, मतलब आप एक rucksack पहन रहे हो बट वो एक बॉडी का पार्ट की तरह आपके हाथ काम करना चाहिए. ओके, इट डजंट फील लाइक अ बर्डन. ठीक है, सो दिस इज द रीजन बेसिकली जो मेरे पास ड्यूटर का बैग है मेरे पास, जो मैं मतलब लॉन्ग डे या फिर मल्टी डे हाइक्स में यूज करता हूँ.
तो मतलब उसकी बेसिकली उसका फ्रेमिंग बहुत प्यारी है, या फिर उसको जब मैं लेके चलता हूँ तो आई कैन से रियली से कि उसका बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है, फिर एयर वेंटिलेशन बोल सकता हूँ। दूसरा जो साइज में मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ तो आई डोंट थिंक लाइक 70-80 लीटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन पैक स्मार्टली इन 45-50 लीटर्स ऑल्सो। The moreover, I can say Okay. the main reason is frame and the morpho actually kind of उसके जो compartments बने हुए हैं वो मेरे को काफी पसंद आते हैं उसमें। ठीक है. How much did it cost? It cost me around 9.5K. Uh, it cost me around And 9,500 हाँ when around. and when did you buy it? Actually ये मैंने अपने दोस्त से मंगाया था from नेपाल। आप ड्यूटर वाले की बात कर रहे हो? हाँ जी। बाकी जो डिकैथ वाला वो तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था। ऑनलाइन भी क्या बोलूँ, वो तो मैं स्टोर से ही मिल जाता है इजीली अवेलेबल। हाँ, ठीक है. What is your experience like with your current backpack? What do you like the most? करंट बैकपैक के साथ अभी एक्सपीरियंस तो मतलब राइट नाउ अभी काफी अच्छा चल रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूटर तो मेरे एक्सपीडिशंस वगैरह या फिर जितनी भी मैंने मल्टी ट्रैक्स करी हैं उसमें तो मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है वो। एंड इफ आई टॉक अबाउट डिकैथलॉन का जो मेरा रक्सैक है, देन ऑब्वियसली यस उसको मैं मल्टी डेज में ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज उतनी ज्यादा बेटर फ्रेमिंग नहीं है उसकी। बट फिर मेरे को काफी हेल्पफुल लगा क्योंकि उसके जो कंपार्टमेंट ओपन करने का मतलब फ्रंट फेसिंग ओपन हो जाता है, देन उसमें से सेग्रीगेट करना सामान वगैरह, मतलब खासकर ट्रिप्स वगैरह में अगर ट्रैक्स पे ना यूज करो ट्रिप्स में यूज करो तो काफी अच्छा उसका है। Okay. What do you dislike about it? ओके सो डिसलाइक अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली यस, जैसे डिकैथ वाला जो मेरा रक्सैक है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मतलब वो है तो अराउंड 60-70 लीटर, बट कभी कभी मेरे को लगता है कि वो कैपेसिटी वाइज उतना जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि उसको उस हिसाब से रख के लेके जाना या फिर ट्रैवल करना उसके साथ हर जगह में मतलब वो ज्यादा कंफर्ट में नहीं आता है। हाँ, ड्यूटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक ही है कि लाइक जो मैंने पैसा खर्च किया या फिर जितना मैंने उसके लिए पे किया है आई थिंक लाइक उतने में और अच्छा मिल सकता था, क्योंकि वो सिर्फ 40 लीटर्स है बट आई कैन एक्सपेक्ट कि लाइक 70-80 लीटर्स भी हो सकता है। हाँ हाँ, देयर इज वन प्रॉब्लम एक्चुअली जो मेजर मैं बोलूंगा, उसके कंपार्टमेंट बहुत लिमिटेड है। बैक बहुत Okay. अच्छा है, नो डाउट कंफर्म है उसके बैक, मतलब बैक उसकी बहुत अच्छी है, बट उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े कम है, वो थोड़े और होने चाहिए थे, लाइक और ऑर्गेनाइज होने चाहिए थे। Fair. Okay. Uh, what are the few things you would like to change in your backpack? मैं ऑब्वियसली अगर इस चीज के लिए बोलूँ तो आई वुड रियली लव टू परचेज अ बैग जिसका प्राइस डिकैथलॉन वाला हो, फ्रेमिंग ड्यूटर वाली हो, क्वालिटी ऑस्प्रे की। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा मांग लिया आपने. हाँ एग्जैक्टली तो हाँ ये मेरी फील है कि जो मुझे चाहिए। अब ऑब्वियसली उतने में जो चाहिए उतने में मिलेगा नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज कि हाँ ये तीन चीजें कि अगर मिल जाती तो ये लाइक चेरी ऑन टॉप है। Okay. Has it ever failed you in a trek? नहीं अभी तक तो नहीं। यस, जो इससे पहले मेरे बैकपैक्स थे उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। दैट इज द रीजन कि मैंने अब इन गियर्स पे ज्यादा अच्छे से खर्च किया है, बिकॉज इससे पहले मेरे पास एक कैंप का था, वो भी काफी बढ़िया था, बट ऑब्वियसली इसकी उसकी लाइफ होती है, मतलब एक टाइम रहता है उसके बाद डिटेरियोरेट होने लग जाता है, तो दैट वाज अ पर्टिकुलर टाइम। बट अदरवाइज इन बैकपैक के साथ मेरे को अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है वैसे ज्यादातर। Okay. Um, Tell me about one frustrating moment with your backpack. So most frustrating moment was with my rucksack that was called like from Decathlon itself. As they claim like it is a waterproof or water resistant, but I can really say like these bags are not water resistant। ठीक है। अब इफ यू आर डूइंग मल्टी डे ट्रैक्स और मल्टी डे हाइक्स यू शुड लाइक, और यू ऑब्वियसली सर मैं चाहूंगा कि मेरा जो अंदर का सामान है गैजेट्स हैं इंक्लूडिंग माई क्लोथ्स इंक्लूडिंग माई अदर टॉयलेटरीज जो सूखी रहे। बट आई वॉज इन केजीएफ टेक्निकली ग्रेट थिंग्स, बट एट दैट टाइम
इवन दो मैंने उसमें रेन कवर भी लगा रखा था, बट उसके बाद भी सामान मेरा काफी गीला हुआ, काफी खराब हुआ अंदर। तो दैट वाज लाइक पर्टिकुलर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट फॉर मी। आफ्टर दैट आई वाज केप्ट यूजिंग लाइक प्लास्टिक बैग्स वगैरह भी यूज करने लग गया हूँ, तो काफी हद तक उसमें सुधार है। Okay. Talking about accessibility and organization, is it really easy to access items while walking? वाइल वॉकिंग कैसे, हाँ मतलब वाटर बॉटल्स, तो मोर ओवर क्या है, मैं थोड़ा सा अपने बैग को थोड़ा कस्टमाइज इसलिए में भी करता हूँ, लाइक कैराबिनर्स वगैरह लगाता हूँ सो दैट कि मेरे को एक्सेसिबल रहे हर चीज। अदरवाइज वैसे तो दिक्कत नहीं आती, लाइक वाटर बॉटल, फोन वगैरह तो ऑब्वियसली यूजुअली मेरे पॉकेट्स में ही रहता है। देन स्नैक्स वगैरह हाँ आ जाते हैं। रेन कवर का एक इशू है कि लाइक रेन कवर आपके ऑन द गो या फिर वाइल वॉकिंग और वाइल ट्रैकिंग आप रेन कवर एकदम से एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको बैग उतारना पड़ता है। तो दैट इज अ वन थिंग कि हाँ दैट कैन इम्प्रूव, कि अगर वो इम्प्रूव हो सकती है तो दैट इज बेटर, कि लाइक आप बाय वॉकिंग या बाय चलते हुए अगर आपको एक्सेस हो जा रहा है तो इट्स रियली गुड। बाकी बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे को बैग नहीं उतारना पड़ता। हाँ फॉर द मेजर रीजंस अगर अच्छे से कर सकता हूँ कि लाइक मेरे को अगर कोई, जब मैंने टॉप लोड कर रखा है देन आई कैन क्लियरली से कि मेरे को वो निकालना पड़ेगा। बट समटाइम इट हैपेंस लाइक आई हैव टू कैरी अ स्मॉल बैग आल्सो, hustling bag you can say, for these particular items. Got it. And जब आप when you are running or running with your backpack on, how does it behave? While running, Hmm. यार रनिंग के साथ तो हाँ ये मैं ऑब्वियसली इस चीज के लिए तो बोलूंगा लाइक ड्यूटर इज अ गुड ऑप्शन यार, बिकॉज वो मैंने यूज किया है वाइल रनिंग या फिर वाइल डूइंग लाइक से ट्रेल रनिंग बेसिकली इन ट्रैक। तो उस समय मेरे को काफी अच्छा रहा है। उसके अलावा तो आई कांट से लाइक किसी और ब्रांड के हाथ मेरे को उतना रिलायबिलिटी या फिर उतना मेरे को अच्छा लगा। Okay. And does your backpack feel heavy even when not fully packed? नो, बट यस, नॉट ड्यूटर, बट यस डिकैथलॉन का जो मेरा अपना बैग है that sometimes feels like a heavy, but I can say कि it also depends on packing actually, ठीक है, how you pack your backpack, and sometimes it happens like there are few models in Decathlon जो मैं पहले यूज करता था, उसमें होता है कि लाइक मैंने कम भी सामान डाला है बट फिर भी लोड आ रहा है क्योंकि फर्म उसकी बैक सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है या फिर उसकी फ्रेमिंग उतनी अच्छी नहीं है, यू कैन से। तो मेरे को लगा कि मतलब वो एक मेजर रीजन हो सकता है। बाकी उसके अलावा तो मुझे जितना लगता है कि like आपकी पैकिंग पे डिपेंड करता है आप पैक कैसे करते हो सामान। Hmm. Um, After how many hours does the discomfort start? Okay, so after actually like if you are doing a trek or if you are hiking, so after at least 3 to 4 hours, after 4 hours continuous hiking, like if you have never removed your day pack while trekking, so after continuous I can do hike or I can go on a trail like continuous for 3 to 4 hours. After that, it start like getting a kind of discomfort on my like shoulder or a back. Hmm. So, like minimum 3 to 4 hours. And where do you feel the pain most? Which body part? हम्म, ज्यादातर मतलब ट्रैप्स पे या फिर यू कैन से लाइक शोल्डर पार्ट पे मेरे को हल्का सा लगता है यूजुअली। Okay, shoulders pain ज़्यादा होता है. हाँ शोल्डर पे यूजुअली होता है, आता मतलब बैक वगैरह पे तो उतना नहीं आता, बट हाँ शोल्डर पे आता है कभी कभी। Okay. Uh, do you use your hip belt and does it work properly? नहीं उसको यूज करता हूँ, दैट इज लाइक दैट इज अ मेजर पार्ट। अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक विद दैट मच लोड। Hmm. So does it help transfer the weight properly? यस यस फॉर श्योर,
श्योर, दैट इज रियली रियली हेल्पफुल। एक्चुअली क्या होता है कि दैट्स लाइक फ्रीक्वेंट मूवमेंट, आप सिर्फ उसको लगा के नहीं कर सकते हो और आप सिर्फ उसके बिना भी नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली मैं जो करता हूँ कि लाइक मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बीच बीच में मैंने लगा लिया, फिर टाइट कर लिया, तो थोड़ा सा उसका वेट शिफ्ट करके मैं अपने कोर पे ले आता हूँ। देन जब लगता है कि मेरे को नीचे ज्यादा हैवी हो रहा है, देन मैं उसको खोल लेता हूँ कि थोड़ा शोल्डर पे आ जाएगा बीच बीच में। ठीक है। And how often do you adjust the straps while trekking? एक दो बार, मतलब जैसे कि अगर मैंने पैकिंग कर ली है तभी मैं चेंज करता हूँ कि लाइक अगर मेरा पैक पूरा लोड मेरा फुल्ली पैक्ड है, देन उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैप्स मैंने एडजस्ट कर लिए। अगर मेरी अनलोड किया है या फिर ऑफ लोड और सामान किया, देन उसके अकॉर्डिंग मतलब दिन में एक दो बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। Um, do you remove your bag frequently to access items? नॉट यूजुअली, वो सिचुएशनल, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, लाइक दैट टू डिपेंड्स। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देन आई विल नॉट रिमूव माय बैग यूजुअली, लाइक बहुत ज्यादा नहीं रिमूव करूंगा। दैट इज अ मेजर वन ऑफ पिट स्टॉप्स जहाँ होता है वहीं रिमूव करता हूँ। अदरवाइज अगर मौसम खराब है या सिचुएशन थिंग है, देन इट वुड बी लाइक पॉसिबल, लेकिन जो मैं रिमूव कर रहा हूँ फ्रीक्वेंटली नहीं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था जो आपको सामान निकालना होता है, लाइक पानी की बोतल, बैग हाँ में या समझ फिर गया, एक्सेसरीज कुछ। वाइज ना। नहीं, वो सारी चीजें मैं हैंडी रखता हूँ अपने पास। लाइक अगर वाटर बॉटल भी है तो मेरे बैग में मेरे मतलब एक्सेसिबल है। एंड स्नैक्स वगैरह एज आई टोल्ड यू, लाइक मे बी इफ आई एम कैरिंग अ स्लिंग बैग, और स्नैक्स वगैरह भी मैं हैंडी ही रखता हूँ कि मेरे को बार बार बैग उतारना ना पड़े। ठीक है, ओके। Um, are the compartments well designed or are they confusing for you? दे आर वेल डिजाइंड, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ लाइक यू कैन से देयर इज अ स्कोप ऑफ लाइक इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा बहुत और हो सकता है वो इम्प्रूव। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपार्टमेंट्स, बिकॉज कंपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े हों बट स्पेशियस हों। ठीक है, ओके, ये इम्प्रूवमेंट है। स्पेस ज़्यादा स्पेशियस हो सकता है। क्या चीज? ओके। आप यही बोल रहे हो कि इम्प्रूवमेंट में स्पेशियस होने चाहिए वो। हाँ, मतलब कंपार्टमेंट बेशक कम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कंपार्टमेंट्स थोड़े कम हो बट स्पेशियस हो। ओके। Uh, what feature you wish your backpack had? सेम जो मैंने कंपार्टमेंट वाली बात बोली है, लाइक थोड़ा सा कंपार्टमेंट वाइज उसके अंदर थोड़ा इशू है। बाकी फ्रेम वगैरह तो अच्छा है, बट हाँ कंपार्टमेंट्स थोड़े और स्पेशियस होने चाहिए थे और हैंडी होने चाहिए थे, मतलब ये है कि एक्सेसिबल होने चाहिए थे थोड़े से। एक्सेसिबल नहीं है क्या? हम्म? अभी एक्सेसिबल नहीं रखते क्या आपको कंपार्टमेंट? मतलब देखो, कुछ कुछ कंपार्टमेंट ऐसे हैं ना कि जब आप जैसे ट्रेल पे चल रहे हो, देन जैसे हाथ एक पीछे किया तो बॉटल वगैरह तो निकल जाती है, बट आई थिंक कि मतलब एक आध कंपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए कि लाइक मैंने जैसे रेन कवर के लिए हो गया, या फिर अगर मेरे को स्लिंग बैग लेना ही ना पड़े, लाइक इफ आई कैन पुट माय सन ग्लासेस इन दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट साइड में आसपास में, एक्सेसिबल रहे हमेशा। तो उसकी उस सेंस में बोल रहा हूँ कि लाइक वैसे कंपार्टमेंट होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो बेटर हो। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मतलब नॉर्मली मैं चल रहा हूँ, अब जितने भी मेरी ट्रैक्स हैं, जितने भी मेरी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स होती है, वहाँ पे मेरे को जो मेजरली चीज है, अगर मैं टॉयलेटरी से बोलूँ तो मेरे को सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, लिप बाम और छोटे छोटे आइटम हो गए, ये सारे मेरे को एक्सेसिबल चाहिए थे हमेशा। ठीक है, तो इन सब के लिए मैं जो चाहता हूँ कि लाइक मेरे राइट और थोड़ा या फिर वेस्ट के पास या फिर पीछे की तरफ ऐसे एक कंपार्टमेंट होना चाहिए जिनको मैं इजीली एक्सेसिबल कर सकूं वाइल ट्रैकिंग। उसके लिए मेरे को बैग ना उतारना पड़े। ठीक है, और अभी मैं उसको अवॉइड करने के लिए अभी स्लिंग बैग लेके चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता तो इट वुड बी गुड कि मैं स्लिंग बैग भी ना लेके चलूं, उसी के अंदर मेरा काम हो जाए सारा। ओके, ओके, गॉट इट। Have you used your backpack in heavy rain and snowfall and all that? Yes, I have used frequently my bag in heavy rainfall or heavy snowfall, And and that also what? what was your experience?
और एक्चुअली एक्सपीरियंस वॉट नॉट दैट गुड इन स्टार्टिंग, क्योंकि तब मेरे को ढंग से पता नहीं था लाइक हाउ टू पैक एग्जैक्टली, ठीक है। देन आफ्टर आई गॉट टू लर्न अबाउट द बैकपैक मॉर्फोलॉजी, लाइक उसके अंदर पैक कैसे करना है, कैसे कैसे रखना है। देन देयर आर लाइक पहले तो मेरे को रेन कवर मिला था उसके बाद, तो ऑब्वियसली मेरे को ड्यूटर से कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है रिगार्डिंग द रेन कवर। अच्छा है उसका, नो डाउट, कोई कोई इशू नहीं है। बट जो मेरा डिकैथ वाला था उसका रेन कवर उतना कोई अच्छा फंक्शनेबल में नहीं था, तो उसके लिए फिर मैंने अलग से रेन कवर लिया। अंदर से मैंने क्या कहते हैं प्लास्टिक में रैप करके कपड़े वपड़े डालने स्टार्ट किए, देन उसके बाद बचने लग गया वो चीज। Okay. And बट देस वन जो मैं मतलब रेकमेंड करना चाहूंगा, या फिर एक इम्प्रूवमेंट बेसिस पे, जो हमारा जिपर लाइन होती है जहाँ पे जिप लगती है ना बैग्स की, तो आई थिंक कि हाँ, उस जिप के ऊपर भी फ्लैप होना चाहिए, लाइक दैट शुड बी अ वाटर प्रूफ फ्लैप कि जो उसको कवर करे। जिप के ऊपर, जिप की हाँ जो लाइनिंग जिपर पे, होती है हमारी एग्जैक्टली लाइनिंग पे एक फ्लैप होनी चाहिए वाटर प्रूफ वाली। ताकि पानी उसमें से अंदर ना चला जाए। एग्जैक्टली। Okay. And uh, how important is waterproofing to you? इट्स रियली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी मेजर ट्रैक्स आर इन मॉनसून और इन विंटर सीजन, ठीक है। पोस्ट मॉनसून और प्री मॉनसून काफी कम ट्रैक्स होती हैं, सो यूजुअली जो मेरी जितनी मेरी एक्सपीडिशन या फिर ट्रैक्स होती हैं वो या तो मॉनसून में है ट्रैक्स, या तो मेरी विंटर में है। सो मॉनसून में जैसे कश्मीर हिट लेक्स हो गया, या वैली ऑफ फ्लावर हो गया, या फिर टॉक अबाउट हमटा पास, सार पास, दीज आर द ट्रैक्स जो कि रेनफॉल या फिर स्नोफॉल में आती हैं। तो वाटर प्रूफिंग तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay. And have the zippers ever failed you? नॉट येट, अभी तक तो नहीं। Like, जब आपके हाथ फ्रीजिंग वगैरह होता है तो आप जिपर्स खोल पाते हो, मतलब साइज वगैरह ठीक है। हाँ वैसे हो जाता है। And did you measure your torso length before buying your backpack? यस। मतलब पर आपने तो बाहर से मंगवाया था तो कैसे करा? नहीं वो तो बेसिकली मैंने अपने दोस्त से मंगाया था, उससे मैंने पूछ के ही मंगवाया था कि लेंथ वाइज, मतलब मेरे ही हाइट हल्का है वो भी, तो उससे मैंने यूजुअली उससे पूछ के मंगाया था कि लाइक उसका कैसा है कैसा नहीं है। मतलब मोर ओवर जो मेरे को बैकपैक चाहिए होता है वो एग्जैक्ट लेंथ का ना मिले, बट वो एडजस्टेबल हो। हम्म। हम्म। सो आप प्रेफर करो कि एडजस्टेबल बैकपैक हो या फिर वो वाले बैकपैक जो आते हैं स्पेशली स्मॉल मीडियम लार्ज साइज वाले, या फिर एक ही बैकपैक जो एडजस्टेबल हो? एक ही बैग जो एडजस्टेबल हो। पर वो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है ना। हम्म। एडजस्टेबल बैकपैक्स मैंने सुना है ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज हुआ है अंदर। मतलब एज सच तो नहीं मेरे को लगा कि वो लाइक हैवी है या फिर ऐसे में है। ओके ओके। सो डिड योर बैग एवर फील टू टॉल और टू शॉर्ट? नहीं एज सच तो कभी मेरे को दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज मैंने उसको हमेशा मतलब अपने हाइट और मोर ओवर लाइक सामान के हिसाब से जितना मेरा लोड है सब में एडजस्ट करके ही रखा है। हाँ। ओके। एंड इज द बैक वेंटिलेशन इफेक्टिव? बैक वेंटिलेशन इज रियली गुड इन ड्यूटर, मतलब जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। उसके अलावा हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा समय तक यूज कर लूँ तो हाँ स्वेटिंग थोड़ी बहुत मेरे को आती है वहां पे। देन कभी कभार मतलब अगर मैं पीक मानसून या फिर पीक समर की बात करूँ, देन उसके अंदर मेरे को रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा मेरे को कभी इशू आया नहीं उसके अंदर। ओके। एंड what is the backpack itself too heavy? नो। मतलब पूरा खाली हो तो आपको ठीक लगता है भारी नहीं हो? नहीं इतना हैवी नहीं है, मतलब हैवी नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा हैवी नहीं है। बस थोड़ा बहुत फ्रेमिंग का वेट है उसका, बट वही है कि एल्युमिनियम वगैरह रॉड्स हैं तो थोड़ा बहुत वेट रहेगा उसका, बट अदरवाइज वो हैवी नहीं है। ओके।
Um, what would you trade durability for a lighter backpack? बिल्कुल, फॉर श्योर। Okay. इफ इट इज अ ड्यूरेबल, इफ इट इज अ लॉन्ग, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक अगर मैं रक्षक पे अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, आई कैन इन्वेस्ट 1000 2000 bucks मोर, बट आई विल रियली प्रेफर कि ड्यूरेबल हो। आप ड्यूरेबल ज़्यादा प्रेफर करोगे या लाइट वेट बैग? वही कह रहा हूँ, ड्यूरेबल हो, क्योंकि इसी लाइट वेट में प्रॉब्लम क्या है ना कि आप कांट गेट एवरी सिंगल थिंग, लाइक एक साथ सब कुछ मिलेगा नहीं। बट अब लाइट वेट में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो कितना ही 200 300 400 500 ग्राम ही लाइट वेट होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा वो। ठीक है, बट अब उस लाइट वेट के लिए मैं ड्यूरेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई नीड अ बैकपैक जो मेरे को रग रहे, लाइक इफ आई एम यूजिंग इन एक्सपीडिशन और ट्रैक्स, तो काफी रग एरिया रहता है या फिर काफी रग ट्रेल रहती है, तो आई विल प्रेफर ड्यूरेबिलिटी ऑन लाइट वेट। Okay. Uh, what trekking brands do you trust? ट्रैकिंग ब्रांड्स, इन टर्म्स ऑफ बैकपैक, आई से ऑस्प्रे एंड ड्यूटन। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं थोड़े ऊपर वाले। Okay. And why do you trust them? वाई डू आई ट्रस्ट देम? सी, बहुत सारे रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो उनकी मार्केट वैल्यू उन्होंने बना रखी है, ठीक है, ट्रस्ट जो मतलब ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है। दूसरा, ड्यूरेबल है ऑब्वियसली, ठीक है। तीसरा, काफी टाइम से पर्सनली यूज करते आ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया उन बैकपैक से। चौथा, एक ये भी है कि लाइक हाँ, उनकी पॉलिसी में को ये भी अच्छी लगती है कि जस्ट इन केस अगर आपका बैकपैक खराब हो जाता है, फट जाता है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी इशू होता है, देन यू कैन गेट इट रिपेयर एट एनी टाइम। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिबिलिटी उनकी दिक्कत है कि लाइक मेरे को रिपेयर करने के लिए उनके स्टोर में भेजना पड़ेगा, दैट मे कॉस्ट, ठीक है, जो मुझे थोड़ा पैसा लग सकता है। बट अपार्ट ऑफ दैट, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है कि हाँ, रिपेयर आप करा सकते हो, देन रग्ड है, देन ट्रस्टेबल है, देन आप उसको यूज भी काफी टाइम से कर रहे हो और अभी तक इशू नहीं आया है ऐसे। Okay. What makes a backpack premium? ओके, सो प्रीमियम कैसे लगेगा? अगर देखो क्या है, मैं अगर आप कोई भी रक्षक अगर आप कोई पैक कर रहे हो ना, मतलब जब आप पैक कर लेते हो फुल रक्षक रक्षक पैक करने के बाद आप उसको सामने रखते हो ना, इवन आप पहनते हो, तो इट शुड लुक लाइक, मतलब एक सुंदर, वो सामने से अपने आप लगता है अट्रैक्टिव कि नहीं यार, ये एक्चुअल में अच्छा रक्षक है, मतलब देखने में भी अच्छा है, ठीक है। देन आप उसको यूज कर रहे हो, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का उसका मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फ्रेमिंग, बैक फ्रेमिंग। अगर बैक फ्रेम सब बहुत बढ़िया है तो नेवर डाउट कि भाई बैक फ्रेम के अलावा रक्षक में और कुछ होता भी नहीं था। Okay. मतलब बैक फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट है, वही उसको प्रीमियम लुक देता है। हम्म And would you buy an Indian brand over an international one? ऑब्वियसली ऐसे, अगर इंडियन ब्रांड, मैंने बोला वही कि अगर मेरे को क्वालिटी वाइज, मतलब ऑस्प्रे ड्यूटर वाला मिल जाए, अगर प्राइस मेरे को टिक गया है, तो अगर 8 9 10 हजार वाला भी मिल जाए इंडियन ब्रांड, एंड आई वुड रियली प्रेफर, हाँ ऐसा नहीं कि सभी मिल जाए एक साथ, बट आई वुड रियली प्रेफर कि मेरे को इंडियन ब्रांड मिले, बट उसी क्वालिटी में अगर मिले तो। Okay. आपने इंडियन ब्रांड एडवेंचर वर्क्स के बारे में सुना है? हाँ जी, एडवेंचर बॉक्स के बारे में मैंने सुना है। इवन आई एम यूजिंग पोंचू, दैट इज फ्रॉम एडवेंचर बॉक्स आल्सो। ओके। तो ये हमारा जो कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है वो एडवेंचर वर्क्स के साथ ही चल रहा है। ओके। हाँ, तो उसमें वी आर एज प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडेंट्स वी आर डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर देम। दैट्स रियली गुड। एज आई सेड कि लाइक, अगर इंडियन ब्रांड में से, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैक्स, बहुत बड़ी मार्केट है, बट प्रॉब्लम इज कि हमारे पास वो मटेरियल नहीं है डिलीवर करने के लिए जिसके लिए लोग अट्रैक्ट हो एकदम से, ठीक है। वी हैव ओनली ऑप्शन, दैट इज डिकैथलॉन। और नो डाउट डिकैथलॉन काफी हद तक सही भी है, बिकॉज छोटे से लेके बड़े तक, तो मतलब जिसको अगर 2000 का लेना तब भी ले पा रहा है, जिसको 10,000 का लेना तब भी ले पा रहा है। बट द ओनली थिंग इज कि अभी भी वो एक ट्रस्ट नहीं बना पाया है, खासकर ट्रैकिंग एक्सपीडिशन कम्युनिटी के अंदर, कि जो कि बाहर के ब्रांड्स यूज करना मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई वुड रियली प्रेफर कि अगर वो क्वालिटी या फिर वो ट्रस्ट मेरे को अगर किसी इंडियन ब्रांड में मिले,
Okay. So you would choose an Indian brand because अगर वो quality मिल जाए आपको. एग्जैक्टली। Does aesthetic matter to you of the bag or just the functionality? फंक्शनैलिटी एक्चुअली, नॉट एस्थेटिक्स। Like the style, the color, and everything. इतना matter नहीं कलर करता. चल, आई कैन मैनेज विद कलर यार, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। Okay. If money wasn't a problem, what would your dream backpack be like? आई डोंट नो एग्जैक्ट मॉडल, बट ऑस्प्रे और द नॉर्थ फेस। Okay, backpacks are your dream backpack. व्हाट? Osprey and North Face backpacks are your dream backpack. यस एग्जैक्टली। And why is it that? What does they have? बिकॉज दे आर यूजिंग अ गुड मटेरियल, ड्यूरेबल, पहली चीज। दूसरा फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने बताया, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्कीयर, आई एम ऑल्सो अ माउंटेनियर, सो I want a single backpack or single rucksack that I can use at every single point. ठीक है, if I'm going for a skiing, then I need a bag जिसके अंदर मेरा सारा इक्विपमेंट वगैरह लग जाए। If I'm going for expedition, then I will need a bag जिसके अंदर आईसेक्ट से लेकर हेलमेट से लेकर हार्नेस, every single equipment that I can carry on that single backpack. I don't need like बहुत सारे बैग मेरे पास हो, like for skiing there is a different bag, for snowboarding उसके लिए अलग हो, या मेरे एक्सपीडिशन के लिए अलग हो। So these are the brands like the North Face और Osprey जो कि ऐसे बैग्स बनाते हैं that I can use at every single point or every single spots. The one bag will suit any condition wherever you take Hmm. it. What? आप कहना चाह रहे हो ऑस्प्रे के बैकपैक्स आर लाइक दैट कि इट कैन सूट एनी अदर कंडीशन वेयर यू टेक इट हाँ, हियर इट्स exactly. One इन stop solution. हाँ हाँ, ओके one stop solution basically. डू यू कैरी योगा मैट्स विद यू व्हाइल ट्रैकिंग मतलब लोग मैट वगैरह लेके जाते हैं Yes, yes. Yoga mats, then sleeping bags, other equipment जो कि बैकपैक के साथ कैरी करते हैं हम। डू यू कैरी अ हैमक Hammock, not usually, because I don't need a hammock on track because I have already placed my tents and other equipment. बट लाइक अगर आप फॉरेस्ट एरिया में हो रॉकी एरिया में हो तो यू वुड वांट टू स्लीप ऑन अ हैमक नहीं ये फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा कुछ ऐसा नहीं, लेके चल सकते हैं, बट अभी तक शायद मैं लेकर नहीं गया हूँ, so I can't say. But yeah, I can carry. It's not an issue. ओके So, in my last semester, I was working on a project where I combined a hammock and a yoga mat together. Ki, like, you don't have to carry two things together. You can just convert both the things. Like, the hammock can be a your yoga mat can be a hammock. Like, अगर आपको नीचे सोने की जगह नहीं मिल रही है, आप ऐसे लटक के ऐसे सो सकते हो. And then, if you Okay, want to okay. practice yoga, you can do that. Or मतलब योगा मैट इज बेसिकली मैट्रेस टाइप होना आप सो भी सकते हो योगा भी कर सकते हो कुछ भी समझ गया। That is improvised shelter basically, moreover. या एंड देन वेट भी कम हो जाता है यू डोंट कैरी मल्टीपल स्टफ दैट्स ऑब्वियस थिंग, लाइक अगर इम्प्रोवाइज आप कर पा रहे हो, यूजुअली देखो सेम चीज हम कभी कभार उससे करते थे, लाइक ग्राउंड मैटर जो हमारी ग्राउंड मैट होती है, हम उसके हाथ करते थे, लाइक if you're not carrying other tents or anything, that you can do that hammock thing from ground mat also. ओके um describe a perfect trekking backpack what all it should have ओके, सो अब बैकपैक पहली चीज, बैक फ्रेम अच्छा होना चाहिए उसका, मतलब बैक की फुल फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन यू आर कैरिंग योर बैकपैक, इट शुड फील लाइक योर बॉडी पार्ट, नॉट अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका मटेरियल कैसा यूज हुआ है। आई वुड रियली प्रेफर कि गोटेक्स मटेरियल हो, या फिर ऐसा मटेरियल हो जो कि वाटरप्रूफ हो। दूसरा, लाइट वेट हो एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तीसरा, अच्छा रेन कवर हो, अच्छी वाटरप्रूफिंग हो उसकी। चौथा, उसकी जिपर बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, लाइक इट शुड बी अ ड्यूरेबल जिपर, लाइक वाई के हो,
ठीक है। एंड सेम कंपार्टमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल कि उसके कंपार्टमेंट्स वेल डिजाइन होने चाहिए, लाइक कम हो बट स्पेशियस हो। देन Okay. एडजस्टेबल स्ट्रैप हो, एडजस्टेबल हाइट हम उसके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, इजीली। Hmm. तो दीज आर द Anything मेजर else? पॉइंट्स जो मैं बोलूंगा, लाइक दैट शुड बी लाइक परफेक्ट बैकपैक। Okay. And what features have you heard that are in a backpack which feel like fake or gimmick? ओके, समटाइम जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स, एक्चुअली जो बहुत सारी स्ट्रैप्स जो लेंथ होती है यूजुअली, ठीक है, दैट शुड बी लिमिटेड। काफी बैकपैक से मैंने देखा है कि लेकिन उनकी स्ट्रैप्स बहुत लंबी लंबी दे रखी हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर रखी है, तो वो सेंस नहीं बनाती है मेरे ख्याल से, कि थोड़ा वो, क्योंकि जब भी आप ट्रैक कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो ना, यूजुअली क्या होता है, सबसे गंदी चीज यूज होने वाली है तो वो स्ट्रैप्स ही गंदी होती है, और उनकी लेंथ की वैसी होती है वो सब चीजें। तो क्या मेरे होती ख्याल से है? मतलब ये है कि लाइक स्ट्रैप्स जो होती है, मतलब हमारे जो स्ट्रैप वगैरह हम जो टाइट हम्म, करते हैं ना, हमारी शोल्डर स्ट्रैप हो गया या बैक स्ट्रैप्स हो गए, तो काफी कई कई तो काफी बैकपैक्स में मैंने देखा कि काफी ज्यादा लंबी होती है, ओवर लेंथ होती है वो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या इशू आता है? इशू ये आता है कि जब आप बैकपैक आप कैरी कर रहे होते हो या फिर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो यूजुअली क्या होता है, कंफर्ट नहीं आता। तो जब भी आप चल रहे हो तो कभी आपके हाथ पे लग रही है, कभी आपके बैक पे लग रही है, आपको जबरदस्ती टाई कर देना पड़ रहा है। तो कुछ सॉल्यूशन उसके लिए भी होना चाहिए, लाइक देयर शुड बी अ रिबिट और देयर शुड बी अ बैंड, कि जहाँ पे आप उसको टाई कर दो, कि लाइक जो आपको इरिटेट ना करे वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैकिंग। Okay. और सेम रेन कवर जो मैं बोलूंगा, लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ रेन कवर, अगर कोई बैकपैक रेन कवर प्रोवाइड कर रहा है, इट शुड बी अ गुड क्वालिटी, ठीक है। वो ऐसे बस एक शो के लिए नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, बिकॉज सेम टाइम इस हैपेंस कि मेजरली जितने भी मैंने रेन कवर्स देखे हैं बैकपैक्स के अंदर, बस एक वो नाम के लिए रहते हैं, वो प्रोटेक्ट ज्यादा करते नहीं हैं। Got it. Um, do you hang items outside your bag? यस। So does it disturb the body balance or load management? नो, नॉट नॉट मच, क्योंकि जो मेरा सामान रहता भी है वो मैं थोड़ा लाइट वेट, लाइक अपना मग हो गया या फिर वाटर बॉटल हो गया, हाँ, हेलमेट वगैरह हो गया, then वही टाई करता हूँ, अदरवाइज और तो कुछ नहीं। Okay. How do you practice load management while you're trekking? सो लोड मैनेजमेंट, यूजुअली जैसे मैंने बताया, लाइक इफ इट्स अ लॉन्ग ट्रेन, पहली चीज मैं क्या करता हूँ, लाइक स्टेप्स, जो मेरा बैकपैक है, जो मैं बैकपैक पहन रहा हूँ, तो मेरा जो टॉप लोड है, या जो मेरे वी नेक के पास आना चाहिए, और वो मेरे हिप या फिर क्या ग्लूट्स से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम, लाइक ऑन अ स्ट्रेच, मैंने शोल्डर पे ले रखा है, देन मेरे को लगता है कि शोल्डर पे हैवी हो रहा है, देन मैं अपनी वेस्ट वाली स्ट्रैप को थोड़ा टाइट करता हूँ, कि थोड़ा लोड उस पर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और वो कीप शिफ्टिंग द लोड, कि लाइक ड्यूरेशन क्या होता है, लाइक एक दो घंटा, एक दो घंटा, एक दो घंटा, वो बारी 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 मैं दोनों पे शिफ्ट करता रहता हूँ, कि लाइक पूरी बॉडी पे एकदम से लोड वो पड़े ना हमारा। Okay. And what plays an important role while load management? Is it your backpack? Is it your shoes? Is it your वो जो sticks आप लोग use करते हो चढ़ने के लिए? What plays an important role ओके, in load ऑल दीज management? थिंग्स, ऑल दीज थिंग, ठीक है। देयर शुड बी गुड, अगर मैं सिर्फ बैकपैक की बात करूं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि बैकपैक का फ्रेम अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, बट अपार्ट ऑफ दैट, दैट्स अप टू यू कि हाउ वेल यू आर यूजिंग योर स्टिक, एंड आपके शूज कितने अच्छे हैं, ठीक है। आपके पास बैकपैक जितना मर्जी अच्छा हो, आपके पास स्टिक जितनी मर्जी अच्छी हो, बट अगर आपके शूज का सोल बहुत हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तभी वो इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मतलब सिंक में चलती है, आई थिंक, कि तीनों तीनों भी क्या, मैं क्लोथिंग की बात भी करूंगा इसके अंदर, जो कि न्यू नहीं है, क्लोथिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि आपकी क्लोथिंग कैसी है या फिर आपकी लेयरिंग कैसी है वाइल ट्रैकिंग में। Hmm. And talking about अभी हमने लोड मैनेजमेंट के बारे में बात करा ना. So, हाँ जी। talking about body balance, how do you balance your body? What all do you use? How मतलब क्या चीजें impact करती हैं आपके body के balance को? ओके, क्या चीजें इम्पैक्ट करती है बॉडी के बैलेंस पे?
Same. मतलब is it your backpack or is it something else or how you pack your मतलब I don't know, I'm just asking body balance के लिए आप क्या करते हो? Okay, Is it the so way you walk? मेजरली बैकपैक बोलूंगा मैं उसमें, ठीक है, कि पैकिंग कैसे हुई है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लाइक पैकिंग शुड बी फर्म, कि लाइक उसका जो लोड मैनेजमेंट है बैग के अंदर, लाइक हैवी, जो हमारा नीचे की तरफ हैवी लोड होना चाहिए, देन मीडियम थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, ऊपर की तरफ लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ बिल्कुल लीस्ट यूज आइटम होना चाहिए। और यूजुअली क्या है, जब आप बैकपैक पैक कर रहे हो तो उसके अंदर कोई स्पेस नहीं बची होनी चाहिए, पूरा पैक रहना चाहिए, प्रॉपर फर्म, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो मोर ओवर पैकिंग में बोलूंगा कि पैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आप हाउ वेल यू आर पैकिंग योर बैकपैक, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हाइल ट्रैकिंग, तो बॉडी बैलेंस या फिर लोड मैनेजमेंट में काम आता है। Hmm. And so my project brief was body balance and load management, and I had to redesign something under that, like, whatever impacts these two things. So what do you think ऐसे क्या चीज़ आती है जो मेजरली बॉडी बैलेंस और लोड मैनेजमेंट में हेल्प करती है या फिर दिक्कत देती है, जिसमें इशू आता है, जिसको रीडिज़ाइन होना चाहिए या काम होना चाहिए उस पर? ओके, सो मोर वो जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं उनमें इशू यही आता है, लाइक बैक फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, कि जैसे हमारे जो बेसिकली जब चलते हैं या फिर हम खड़े होते हैं तो हमारी जो स्पाइन की या फिर हमारी बैक की एक मॉर्फो है, फिर जो डिजाइन है एक तरह से, उसी के हिसाब से बैकपैक्स का डिजाइन होना चाहिए एडजस्टेबल, ठीक है। दूसरा, पैडिंग पैडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे जो शोल्डर स्ट्रैप्स वगैरह हो गया या मेरा वेस्ट स्ट्रैप हो गया, उसकी पैडिंग, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मेरे को चुभ रही है बिल्कुल ही, ठीक है, उसकी पैडिंग अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं कि दबे, ठीक है, एक बहुत ऑप्टिमम अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। सेम फॉर वेस्ट जो होती है स्ट्रैप, उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। देन अगेन उसके अलावा 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 तो एज सच नहीं है कि अच्छा, लाइक जो बॉडी लोड मैनेजमेंट। सिर्फ बैकपैक ही मेजर रोल प्ले करता है, लाइक अगर मैं इस टॉपिक के अंदर बैकपैक चूज करती हूँ तो इज इट करेक्ट कि कुछ और चीज चूज करनी चाहिए? नहीं, लोड मैनेजमेंट में देखो बैकपैक भी है, देन स्टिक भी है, ऑब्वियसली स्टिक भी है, शूज भी है, ठीक है। स्टिक खासकर ये है कि हाँ, मतलब देखो स्टिक्स बहुत लोग यूज करते हैं, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्टिक यूज कैसे करना है, ठीक है। काफी लोग स्टिक्स को जस्ट ऐसे ही यूज करते हैं कि लाइक उनको लगता है कि स्टिक यूज करेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कि जब आप स्टिक यूज करते हो, यू शुड नो कि आप स्टिक कितने अच्छे से यूज करना है कि आपका बॉडी लोड उस पर डिलीवर कर सको, ठीक है। वैकेशन है उसमें उसमें हर चीज उसमें इन्वॉल्व होती है, बट हाँ बैकपैक एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज बैकपैक एटलीस्ट जो आप अपने बैग पे अराउंड 10 to 15 kg का लोड जो आप लेके चल रहे हो, वो पहले वेल मैनेज होना चाहिए, देन यू कैन यूज स्टिक, देन शूज, ये सारी चीजें उसमें आती है फिर। ओके। आई गेस मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है आप बता सकते हो। ओके, सो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा, लाइक इफ यू डूइंग ऑन अ लोड मैनेजमेंट, तो वही मतलब मेजरली यही पार्ट है। देखो क्या होता है, मतलब अगर कंपार्टमेंट सॉर्टेड होंगे तो लोड बहुत सॉर्टेड रहेगा, सॉर्टेड इन द सेंस कि अगर मेरे कंपार्टमेंट स्पेशियस है और कम है तो पहले तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, दूसरा क्या है, मैं अपने लोड्स को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा, फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक बैग की फ्रेमिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने बताया कि लाइक एक्सेसिबल एक्सेसिबल होना चाहिए मेरे को सारा सामान, ये सारी चीजें सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। प्राइमरी जो चीज मेरे को ज्यादा बेटर लगती है लोड मैनेजमेंट में, कि लाइक उसकी फ्रेमिंग, उसके स्ट्रैप्स, उसका वेस्ट स्ट्रैप, उसका चेस्ट स्ट्रैप या फिर उसका शोल्डर स्ट्रैप, वो उसकी पैडिंग अच्छी होनी चाहिए, देन उसका बैक की पैडिंग अच्छी होनी चाहिए, बैक की फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जो मैं एक बैकपैक में चाहूंगा। देन कंपार्टमेंट्स वगैरह ये सब चीजें तो चलो एक बार को सेकेंडरी पार्ट है, बट मोर ओवर आई वुड रियली प्रेफर कि लाइक ड्यूरेबिलिटी हो, फ्रेमिंग अच्छी हो। तो मेरे को चलते वक्त अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को बैकपैक का ज्यादा ना सोचूं, रेदर देन ट्रैक्स का ज्यादा सोचूं मैं वहाँ पे। ओके, यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। या अगर मेरे को आगे कुछ हेल्प या क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आई विल कॉन्टैक्ट यू फर्दर। एंड यस।
Okay, first, thank you so much, Garima. Yeah, you're welcome. See you. Bye. Thank you. Okay, welcome, most welcome.